Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the alimentary canal of fishes, which includes the mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, pylorus, intestines, as well as the rectum of fishes, and we will also discuss in detail about the pancreas and liver of fishes. Now we will start our topic with the definition of alimentary canal of fishes. Alimentary canal is the whole passage along which food passes through the body from mouth to anus during digestion. यानी माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा ट्रैक है उसको एलिमेंट्री ट्रैक कहा जाता है. And as in other vertebrates, the alimentary tract can be divided into anterior and posterior regions. यानी एलिमेंट्री कैनाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है फॉर द कन्वीनियंस. एक इसका एंटीरियर पार्ट है और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट. द एंटीरियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ माउथ, बकल कैविटी विच इज आल्सो नोन एज चीक कैविटी और माउथ कैविटी, एंड फेरिंग्स. द अदर वन इज पोस्टीरियर पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द फोरगट विच इंक्लूड्स द ईसोफेगस एंड स्टमक, मिड गट और इंटेस्टाइन, and the hind gut or rectum. But according to some authors, the digestive tract of fish is divided into 4 regions. कुछ authors के मुताबिक digestive tract जो fish का है उसके 4 regions होते हैं. The first one is foregut, which includes the esophagus and stomach if they are present, midgut, hindgut, and the last one is rectum. The foregut begins at the posterior boundary of the gill cavity or pharynx and includes the esophagus, the stomach, when present, and the pylorus. And there are 2 types of muscle cells which are present in the digestive tract of fishes, and these are the voluntary striated muscles and involuntary smooth muscles. तो first one जो है voluntary striated muscles हैं, they extend from the buccal cavity into the esophagus. तो बकल कैविटी से लेके ईसोफेगस तक जो है वॉलंटरी स्ट्राइएटेड मसल्स फिश के अंदर पाए जाते हैं, वाइल द इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ईसोफेगस के पोस्टीरियर पोर्शन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो एरिया है वहाँ पे कौन से मसल्स पाए जाएंगे? स्मूथ मसल्स. तो स्मूथ मसल्स बेसिकली क्या हैं? दे आर द विजरल मसल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन विजरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, blood vessels and many other organs. Smooth muscles is also called involuntary muscle because brain centers do not control their contractions. Smooth muscle fiber have a single nucleus and they are spindle shaped, while the other muscles which are known as voluntary striated muscles, they are also known as the skeletal muscles. And these muscle fibers are multinucleated and they are basically the voluntary muscles. यानी ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, दस नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स देयर कॉन्ट्रैक्शंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हैग फिशेस एंड लैम्प्रेज. इन केस ऑफ हैग फिशेस एंड लैम्प्रेज, द एब्सेंस ऑफ ट्रू जॉज इज कोरिलेटेड विद द एब्सेंस ऑफ अ स्टमक. तो हैग फिशेस और लैम्प्रेज चूँकि एनेथेंस फिशेस हैं, जॉलेस फिशेस हैं, तो इनके अंदर ट्रू जॉज नहीं पाए जाते हैं, तो इसी वजह से ही इनका स्टमक भी जो है उस नहीं पाया जाता है. तो स्टमक क्योंकि जो है वो एक साइट है फॉर प्रोटीन डाइजेशन एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय द एंजाइम पेप्सिन. यानी स्टमक के अंदर जो है पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोवाइड प्रॉपर पीएच फॉर पेप्सिन and also serves as a chemical barrier to bacteria and parasites. It may also assist with the breakdown of hard shelly materials. The stomachs of many fishes also exhibit chitinase activity, although whether this enzyme is secreted in the stomach or esophagus or both is not clear. यानी फिश का जो स्टमक है ये प्रोटीन की डाइजेशन का काम कर रहा होता है, तो ये जॉ लेस फिशेस के अंदर नहीं पाया जाता है. Presumably the evolution of jaws permitted capture of larger prey. तो जॉज का फ़ायदा क्या था कि बहुत बड़े बड़े शिकार को ये पकड़ के अंदर निगल लेते थे, फिर उसके बाद उनकी जो प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट किया जाता था स्टमक के अंदर, मेकिंग अ स्टोरेज ऑर्गन. तो स्टमक एक स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे जो है वो काम करता है, द स्टमक, विच इज़ हाईली एडवांटेजियस. बोथ हैग फिशेस एंड लैम्प्रेज हैव अ स्ट्रेट इंटेस्टाइन. अब इनका दूसरा करैक्टर क्या है कि दोनों फिशेस के अंदर जो प्रिमिटिव फिशेस हैं यानी जो साइक्लोस्टोम्स हैं, दे हैव अ स्ट्रेट इंटेस्टाइन. इनकी इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी इनका. बट द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन इज इंक्रीज्ड इन द लैम्प्रेज बाय द टिफ्लोसोल.
तो लैम्प्रेस जो है इनके अंदर एक और यानी कि अंदर दरमियान में स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको टिफ्लोसोल कहा जाता है, विच इज़ अ फोल्ड इन द इंटेस्टाइनल वॉल्स। तो लैम्प्रेस की जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं वहाँ पे एक फोल्ड पाया जाता है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, उसको टिफ्लोसोल कहा जाता है, जो सरफेस एरिया को मजीद इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ कॉन्डरिथाइज यानी कार्टिलेजिनस फिशेज जिसमें शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स और रेस, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन बाय मींस ऑफ अ स्पाइरल वॉल्व। अब यहाँ पे आप इसके नीचे जो है डायग्राम आप देख सकते हैं जिसमें आपको स्पाइरल वॉल्व दिखाया गया है कि इनकी इंटेस्टाइन का कॉन्डरिथाइज की जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। ये दरमियान में आप अगर देखें तो दिस इज़ द इंटेस्टाइनल पार्ट जिसमें आप ये स्पाइरल वॉल्व्स देख सकते हैं, एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्पाइरल स्टेयरकेस इनसाइड द इंटेस्टाइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर गया है इन केस ऑफ शार्क्स। तो ये स्पाइरल वॉल्व इंटेस्टाइन के अंदर आप शार्क्स का देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम आपको दिखाई गई इलेज़्मोब्रैंक्स की, यानी ये भी शार्क्स के ही डाइजेस्टिव ट्रैक की जो है वो एक आपको जो है वो दिखाई गई है डायग्राम, जिसमें आप उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको जो है ईसोफेगस आप ये देख सकते हैं, ई स्टैंड्स फॉर ईसोफेगस। इसी तरह से एल स्टैंड्स फॉर इसका लीवर, ये लीवर आपको दिखाया गया है। पी स्टैंड्स फॉर पैंक्रियाज, ये इसका पैंक्रियाज है। पी ए स्टैंड्स फॉर पाइलोरिक अपेंडिसेस, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये पाइलोरिक जो है इसके अपेंडिसेस हैं, और ये स्पाइरल गट जो है वो आप देख सकते हैं उसकी। तो इसमें यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब दूसरी तरफ ये वाला जो आपको दिखाया गया है स्टमक, वो भी आपको जो है उसका कंपैरिजन किया गया है टिलियोस फिश के साथ। यानी इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो इलेज़्मोब्रैंक का है, दूसरा जो आपको दिखाया गया वो टिलियोस या मॉडर्न फिशेस का दिखाया गया है। तो दोनों के अंदर आप स्ट्रक्चरल वेरिएशन देख सकते हैं कि ट्रैक के अंदर स्ट्रक्चरल वेरिएशन पाई जाती है काफ़ी ज़्यादा। जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि टिफ्लोसोल पाया जाता है इन केस ऑफ लैम्प्रेस। तो लैम्प्रे फिशेस के अंदर जो है वो टिफ्लोसोल होता है, या आप उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं टिफ्लोसोल की। तो ये इंटेस्टाइनल फोल्ड है एक, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइन्स के इन केस ऑफ लैम्प्रे फिशेस। अब हम अगर डाइजेस्टिव ट्रैक को स्टार्ट से देखें इसकी एनाटॉमी को, तो सबसे पहले इसमें आता है माउथ या बकल कैविटी। द बकल कैविटी एंड फेरेंक्स लैक द सलाइवरी ग्लैंड्स इन केस ऑफ फिशेस। अब फिश की मैमल से एक जो बेसिक डिस्टिंक्शन है वो ये है कि इनकी बकल कैविटी या माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं एब्सेंट होते हैं, सिवाय कुछ फिशेस के जैसे पैरासाइटिक लैम्प्रेज हैं। तो पैरासाइटिक लैम्प्रेज जो हैं उनके अंदर जो है माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एंड पैरासाइटिक लैम्प्रेज के अंदर भी जो उनकी फैमिली पैट्रोमाइजोनिडी है उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में पाए जा सकते हैं फिश के। And this area is concerned with seizure control and probably also in selection of food। तो अब इस एरिया से होल्ड करना होता है फिश ने अपने शिकार को, उसका कंट्रोल करना होता है, और सिलेक्शन ऑफ फूड भी माउथ ही तय करता है। द ईसोफेगस इज अ शॉर्ट थिक वॉल्ड ट्यूब विच इज लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम, म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स एंड ऑफन टेस्ट बड्स। तो ईसोफेगस के अंदर स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल लेयर भी है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी हो सकते हैं और टेस्ट बड्स भी पाए जा सकते हैं। सो वी कैन से दैट द ईसोफेगस इज अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब विच कनेक्ट्स द ओरोफेरेंक्स विद द स्टमक, और द ईसोफेगस कैन एक्सपैंड टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट एनीथिंग अ फिश कैन गेट इन इट्स माउथ। इन मेरीन एंड यूरीहेलाइन फिशेस सच एज तिलापिया, eel and flounder, the esophagus also plays an important role in maintaining water balance, serving as a site for the absorption of water imbibed by the fish in order to offset osmotic losses to a hypertonic environment. Fishes of the order Stromatidae often possess pharyngeal sacs that may or may not be equipped with tooth-like projections. Many of these species feed on soft-bodied coelentrates. तो फिश का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका इंटीरियर पोर्शन जो है, जैसे हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, उसमें स्ट्राइएटेड मसल्स पाए जाते हैं, यानी स्केलेटल मसल्स होते हैं। द पोस्टीरियर पार्ट इंक्लूड्स द स्मूथ मसल्स दैट प्रोड्यूस पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ऑफ द फूड टुवर्ड्स द स्टमक। तो यानी कि वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट होंगी जिससे खुराक जो है स्टमक की तरफ मूव करेगी फिश में। द ईसोफेगस इज वेरी डिस्टेंसिबल। अब ईसोफेगस जो है वो डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर है, यानी अपने आप को चौड़ा कर सकती है, फैला सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। सो चोकिंग इज रेयर। अब ये नहीं होगा कि फिश का जो गले में खुराक फंस जाए और उसके सांस जो है वो बंद हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। बट मिस कैलकुलेशन ऑफ प्रे साइज कैन लीड टू द डेथ ऑफ द प्रेडेटर। तो अक्सर क्या होता है कि प्रे साइज जो है उसको मिस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अब स्टिकल बैग्स फिशेज जो हैं
दे बिकमिंग स्टक इन द थ्रोट ऑफ पिकरल। तो पिकरल जो फिश है उसके अंदर, उसके गले के अंदर अक्सर क्या होता है, स्टिकल बैक्स फिशेज जो है फंस जाती हैं, जिससे जो है वो प्रेडेटर यानी पिकरल की जो है वो डेथ हो सकती है। तो इस तरह रेयर केसेस में हो जाता है। In the last slide we had discussed about the sticklebacks and pickerel. The sticklebacks belongs to the family of fish including the Gastrostridae, and they are related to the pipe fishes and seahorses. They are most commonly found in the ocean, but some can be found in fresh water. Sticklebacks are carnivorous fishes and they feed on small animals such as insects, crustaceans and fish larvae. The second one fish is a chain pickerel, and it is a species of freshwater fish in the pike family. It has a dark, distinctive chain-like pattern on its greenish sides. अब यहाँ पे आप इसकी greenish sides पे chain-like pattern देख सकते हैं. That's why they are named as chain pickerel. Chain pickerel primarily feeds on smaller fishes until it grows. Now in this slide we will discuss about the stomach of a fish. The stomach of a fish may be present or absent depending upon the situation. In its simplest form, the stomach is an elastic sac that receives and stores food and begins chemical digestion. However, in mullets, Coregonus, Sardinella or more Myrus fishes, most of which are microphagous detritivores or herbivores, part of the stomach may be modified into a gizzard-like structure in these fishes. But in case of predaceous fishes, the stomach is lined with columnar epithelium with mucus secreting cells. अब जो प्रेडेशियस फिशेज होती हैं, इनका जो स्टमक है उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, उसकी इनर लाइनिंग जो है वो कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं और कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाए जाते हैं, एंड वन टाइप ऑफ ग्लैंडुलर सेल दैट प्रोड्यूसेस पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक ऐसे ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं जो पेप्सिन पैदा करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करते हैं। जो पेप्सिन का काम क्या है कि ये प्रोटीन की डाइजेशन करने वाला एंजाइम है। इसी तरह से ACL के भी इसके अंदर फंक्शन है फिश के अंदर। Because the stomach is a site of protein digestion which is initiated by the enzyme pepsin. Hydrochloric acid secreted by gastric glands provides proper pH for pepsin and also serves as a chemical barrier to bacteria and parasites. अब ACL क्यों पैदा करते हैं यानी फिशेस, क्योंकि ये जो है प्रॉपर एक तो pH प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए, यानी pH को लोअर करने का काम करता है स्टमक के अंदर। इसी तरह से ये केमिकल बैरियर है टू बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। इट में आल्सो असिस्ट विद द ब्रेक डाउन ऑफ हार्ड शैली मटेरियल्स। तो ACL क्या करता है, अगर फिश ने कोई हार्ड जो है वो ऑर्गेनिज्म को, शैली ऑर्गेनिज्म को खाया है तो उसको भी ये ब्रेक डाउन कर देगा। The stomach of many fishes also exhibit chitinase activity, although whether this enzyme is secreted in the stomach or esophagus or both is not clear. तो ये chitinase activity भी जो है फिश का स्टमक शो कर रहा होता है। Although usually a fair simple structure, the evolutionary modifications of the fish stomach have led to some unusual functions. हालांकि फिश का स्टमक का बेसिक फंक्शन अगर हम देखें तो वो क्या है, ऊपर आपने पढ़ लिया है कि ये जो है म्यूकस सिक्रीट करता है, जो है पेप्सिन को सिक्रीट करता है, ACL को सिक्रीट करता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए। लेकिन इसके अलावा भी अब डिफरेंट फिश के ग्रुप्स के अंदर इसकी मॉडिफिकेशंस हो गई हैं फंक्शंस की। जैसे फॉर एग्जांपल the stomach, not the gas bladder, is used for defense by blowfishes and porcupine fishes. अब जो ब्लोफिशेज और पोर्कुपाइन फिशेज हैं, इनका जो स्टमक है वो क्या है, डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज होता है। यानी वो एयर को जो है गल्प कर लेती हैं या वाटर को गल्प कर लेती हैं, जिससे उनका साइज इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से जो उनका प्रेडेटर होता है वो उनको काफ़ी बड़े साइज की समझता है, वो उनको गल्प नहीं करता या उनको निगलता नहीं है। तो इस तरह से ये फिश अपने आप को जो है बचा लेती हैं अपने प्रेडेटर से। ये अडेप्टेशन है उनके अंदर उनके स्टमक की वजह से। द स्टमक इज मॉडिफाइड इनटू ग्राइंडिंग ऑर्गन इन स्टर्जन्स। अब जो स्टर्जन्स फिश हैं उनके अंदर जो है वो गिजर्ड की तरह स्टमक काम करता है। जैसे चिकन का गिजर्ड होता है तो ग्राइंडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से गिजर्ड शैड्स के अंदर भी इसी तरह है, और मुलट्स के अंदर भी जो है ग्राइंडिंग ऑर्गन है जो स्टमक होता है। और स्टमक अगर हम दूसरी फिश के वाले से बात करें, इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन इन सम ऑफ द साउथ अमेरिकन आर्मर्ड फिश कैट फिशेस। अब जो ऑक्सीजन है ये अक्सर स्टमक यानी कि हालांकि स्टमक का फंक्शन तो नहीं ऑक्सीजन को ट्रैप करना या कैप्चर करना, ये तो गैस ब्लैडर का फंक्शन है।
लेकिन जो साउथ अमेरिकन आर्मर्ड कैट फिशीज़ हैं, इनके अंदर क्या है कि जो स्टमक होता है, क्योंकि ये बहुत कम ऑक्सीजन वाले जो है वो एरियाज़ में रहती हैं, तो इसीलिए फिर इनका जो स्टमक है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है वाटर के अंदर। तो ये भी इनके अंदर एवोल्यूशनरी एक एडेप्टेशन है। आप यानी इसमें ये कह सकते हैं कि फ़िश का जो स्टमक है वो वेरी करता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशीज़, और इसके फंक्शन भी वेरी करते हैं। तो वेरी किस तरह से करते हैं, क्योंकि उसमें एवोल्यूशनरी मोडिफिकेशंस हो चुकी हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशीज़। We have discussed the evolutionary modifications of fish stomach in previous slide. उसमें हमने जो है वो स्टमक का एक फंक्शन देखा है कि इट इज़ यूज फॉर डिफेंस इन पोर्कुपाइन फिशेस। तो अब हम पोर्कुपाइन फिश को डिस्कस करते हैं। पोर्कुपाइन फिश आर द फिश विच बिलोंग्स टू द फैमिली डायोडोंटिडी। इनकी फैमिली जो है वो डायोडोंटिडी है, एंड देयर ऑर्डर इज टेट्राओडोंटिफॉर्म्स, एंड दे आर कॉमनली नोन एज ब्लो फिश, बैलून फिश एंड ग्लोब फिश। तो बैलून लाइक बॉडी इनकी चूंकि बन जाती है जब ये एयर को या वाटर को ट्रैप करती हैं या गल्प करती हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज बैलून फिशेस, एंड दे आर समटाइम्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज पफर फिश। पोर्कुपाइन फिश हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लेट देयर बॉडीज बाय स्वेलोइंग वाटर और एयर। अब ये एयर या वाटर को स्वेलो करती हैं जो स्टमक में जाती है इनके, देयर बाय बिकमिंग राउंडर, जिससे इनकी बॉडी राउंडर शेप की हो जाती है। दिस इंक्रीज इन साइज ऑलमोस्ट डबल वर्टिकली। अब ये जो यहाँ पे आप पोर्कुपाइन फिश देख सकते हैं, तो ये अपने साइज को जो वर्टिकली यानी कि इंक्रीज करेगी, हॉरिजॉन्टली नहीं तो डबल हो जाएगा, इसका साइज डबल नजर आएगा, विच रिड्यूसेस द रेंज ऑफ पोटेंशियल प्रीडेटर्स टू दोज विद मच बिगर माउथ्स। तो इससे क्या होगा कि जो इसके शिकारी हैं जो इसका शिकार करते हैं, तो उनका जो है वो थ्रेट जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जिनका माउथ भी इवन बिगर होता है वो भी इसे कैप्चर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है, काफ़ी फैल जाती है, ये अपने जिस्म को फैला लेती है, डबल कर लेती है। अ सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय द शार्प स्पाइंस। अब दूसरा इसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइंस इसके होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, विच रेडिएट आउटवर्ड्स व्हेन द फिश इज इन्फ्लेटेड। तो जब फिश पूरी फैल जाती है, इन्फ्लेट कर जाती है, तो इसके स्पाइंस भी सारे बाहर की तरफ निकल आते हैं, जिससे इसका प्रीडेटर जो है, पोटेंशियल प्रीडेटर, ये उससे बच सकती हैं। जैसा कि हमने पहले एक फ़िश को डिस्कस किया था, पोर्कुपाइन फ़िश को, जिनका स्टमक जो है वो डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसी तरह से दूसरी भी फिशेज़ का एक ग्रुप है जिसको ब्लो फिशेज़ कहा जाता है। तो ये इनका स्टमक भी जो है वो डिफेंस पर्पज़ के लिए ही यूज़ करती हैं। और जो बायोलॉजिस्ट हैं, दे थिंक दैट द पफर फिश विच इज़ आल्सो नोन एज ब्लो फिश डिवेलप्ड देयर फेमस इन्फ्लेटेबिलिटी बिकॉज ऑफ देयर स्लो समवट क्लमजी स्विमिंग स्टाइल्स विच मेक्स दैम वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। तो इसी वजह से जो है इनका जो है वो स्टमक जो है वो जो है उसके अंदर एबिलिटी है कि वो बहुत सारा वाटर को या बहुत सारी एयर को गल्प कर सकता है या ले सकता है, टू टर्न देमसेल्व्स इनटू अ वर्चुअली इनएडिबल बॉल सेवरल टाइम्स देयर नॉर्मल साइज। तो ये ऐसे अपने आप को बॉल शेप में तब्दील कर लेती हैं जो कि इनके साइज से कई गुना बड़ा होता है। सम स्पीशीज आल्सो हैव स्पाइंस ऑन देयर स्किन टू मेक देम इवन लेस पैलेटेबल। तो ये जो आपको यहाँ पे ब्लो फिश दिखाई गई है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं इसका कि ये वाटर फ्लो है इसके माउथ के थ्रू हो रहा है, और इसका स्टमक का साइज़ आप पहले देख सकते हैं कितना छोटा सा था। तो अब इसने वाटर को जो है वो लेती जा रही स्टमक के अंदर, अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका स्टमक काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है। और फिश देखें कि भाई इसने अपने आप को बिल्कुल एक राउंडेड बॉल शेप जो है ना उसकी इख्तियार कर ली है। तो इसकी वजह से ये इसका जो है प्रीडेटर इसको जो है वो खा नहीं पाएगा या इसको इनटेक नहीं इसका हो पाएगा उसके अंदर। The puffer fishes are able to defend against predation by inflating their bodies threefold by swallowing water. अब ये अपनी बॉडी को 3 गुना जो है ज़्यादा बड़ा कर सकती हैं वाटर को जो है स्वेलो करके। रिदमिकल बकल पंपिंग इज यूज्ड टू फोर्स वाटर इनटू द स्टमक। अब बकल पंपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे होगा कि यहाँ से जो है वाटर को पंप किया जा रहा होगा स्टमक के अंदर, और ये स्टमक जो है फिल अप होता जाएगा विद वाटर, विच विल इंक्रीज 50 to 100 फोल्ड इन वॉल्यूम। अब स्टमक का जो वॉल्यूम है वो 50 से 100 गुना ज़्यादा हो सकता है अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। द स्टमक इज़ अ हाईली एक्सटेंसिबल सैक लाइक डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट lined by thick folded stratified epithelium similar in appearance to the extensible transitional epithelium of the mammalian urinary bladder। तो यूरिनरी ब्लैडर की तरह ही इसकी जो है इंटरनल लाइनिंग होती है, जैसे मैमल्स का यूरिनरी ब्लैडर की इंटरनल लाइनिंग है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, तो वैसी ही इसकी लाइनिंग होती है। When stretched, the epithelium thins as the columnar cuboidal cells become discoid।
तो अब इसमें क्या होगा, जब इसको स्ट्रेच किया जाता है तो इसकी एपिथेलियम जो है वो थिन होती जाएगी, क्योंकि कोलमनर क्यूबाइडल सेल्स जो हैं वो डिस्कॉइड शेप हो जाएंगे, यानी डिस्क शेप बनते जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड पाइलोरस होल्ड द वाटर इन। अब इसके अंदर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी यहाँ पे है, और इसके अलावा इसके अंदर पाइलोरस स्फिंक्टर भी है जो कि स्टमक से आगे यानी इंटेस्टाइन की तरफ होता है। तो वो दोनों जो स्फिंक्टर्स हैं वो क्लोज रहेंगे, तो इस तरह से वाटर जो है वो स्टमक के अंदर मौजूद रहता है। द स्टमक लैक्स डाइजेस्टिव फंक्शंस एज इन अदर टेट्राओडोंटिफॉर्म्स। तो टेट्राओडोंटिफॉर्म्स जो दूसरे हैं उनके अंदर क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के भी फंक्शन है, स्टमक जो है डाइजेशन का भी काम कर रहा होता है, लेकिन इन फिशेस के अंदर स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं वो क्या हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हुए हैं, क्योंकि ये डिफेंसिव पर्पस के लिए इनका स्टमक जो है वो ये यूज़ करती हैं ब्लो फिशेस जो हैं। Now we are going to discuss about the stomach of Atlantic sturgeon, which is used as a grinding or gizzard-like organ. The Atlantic sturgeon are bottom feeders, and they typically look for food that includes invertebrates such as crustaceans, worms, mollusks, and bottom-dwelling fish such as sand lance. So as they swim along the bottom of the sea, Atlantic sturgeons use their barbels to search and catch food. The food travels down the esophagus and into the stomach. The acid in the stomach called HCl helps to break down the food that the sturgeon can't break down because they don't have teeth. तो अब स्टर्जन्स के चूंकि तीथ नहीं होते हैं, ये आप स्टर्जन यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका ये स्टमक आपको दिखाया गया है जिसमें ये पाइलोरिक सीकी आप देख सकते हैं, या मस्कुलर गिजर्ड या आप देख सकते हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करता है, चक्की की तरह काम करता है, पीसता है, यानी ये ग्राइंड करता है। तो इनके माउथ में चूंकि तीथ नहीं है, दैट्स वाई ये खुराक को च्यू नहीं कर सकती हैं, तो इनके अंदर गिजर्ड पाई जाती है। इससे स्टमक की मॉडिफिकेशन है जो खुराक को जो है वो डाइजेस्ट कर देगी, हजम कर देगा। The second fish which uses its stomach as a grinding organ is gizzard shad. The gizzard shad is named for its muscular gizzard-like stomach, and gizzard shad eat microscopic phytoplankton and zooplanktons. Larger fish add algae and decaying organic matter to their diet. They also eat sand, which probably helps to grind up food in their gizzard-like stomach. So to eat, gizzard shad takes water or mud into their mouths and then strain it through their gills. Water and sediment are removed and the food is captured and eaten. To grind and break up this plant matter, gizzard shad possess a unique muscular stomach called the gizzard. तो अब यहाँ पे आप इसका इमेज देख सकते हैं gizzard shad का, जो कि प्लांट के अंदर स्ट्रेनिंग करती है, तो उसमें से जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स को फीड कर रही होती है। तो इसका स्टमक जो है वो गिजर्ड लाइक है, तो वो उनकी ग्राइंडिंग करता है फिर बाद में। Now we will quote the third example of a fish species in which the stomach acts like a grinding organ, and these are mullets. Most of the mullet species have a muscular gizzard-like stomach that enables them to grind their food before it starts through an exceptionally long digestive tract. तो अब जो मुलट्स हैं, दे बिलोंग टू द फैमिली म्यूगिलिडी और रे फिन्ड फिश, एंड दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड इन कोस्टल टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वाटर्स एंड सम स्पीशीज इन फ्रेश वाटर. Mullets have served an important source of food in Mediterranean Europe since Roman times. The family includes about 78 species in 20 genera. तो मुलट्स का अगर हम ये देखें गिजर्ड, तो आपको यहाँ पे एक स्लाइड में जो फिगर दिखाई गई है उसके अंदर एंटीरियर पोर्शन डाइजेस्टिव ट्रैक का दिखाया गया, जिसमें गिजर्ड मुलट का एक दिखाया गया ए डायग्राम में, और बी डायग्राम में आप शैड फिश का जो है वो गिजर्ड देख सकते हैं। तो गिजर्ड को जी से ये शो किया गया है, दिस इज़ द गिजर्ड ऑफ अ मुलट फिश। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है बी, इसमें आपको ये गिजर्ड दिखाया गया है किसका, जो शैड फिश है। तो ये दोनों का जो गिजर्ड है जो ग्राइंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ फिश करती हैं वो ये आपको दिखाया गया है, और ये फिश का जो मुलट फिश है उसका इमेज आपको दिखाया गया है। The South American armored catfish uses its stomach to extract oxygen, and they belong to the largest family of catfishes, which is known as Loricariidae. अब अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो दे लिव इन फ्रेश वाटर्स ऑफ साउथ अमेरिका, बट दे कैन टॉलरेट मॉडरेट salinity too. They have a vascularized stomach
which allows them to breathe air. तो इनका स्टमक जो है वैस्कुलराइजेशन उसके अंदर हुई है. इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, दैट्स वाई दे कैन ब्रीद एयर. इट कैन सर्वाइव इन लो ऑक्सीजन वाटर्स, इसी वजह से ये लो ऑक्सीजन वाटर में भी सर्वाइव कर सकती हैं. एंड दे कैन गल्प एयर एंड सर्वाइव आउट ऑफ वाटर फॉर मोर देन 30 आवर्स. प्रीडेटर्स इंक्लूड फिश, बर्ड्स, river otters and crocodiles. If we talk about the gnathostomes or jawed fishes, many jawed fishes lack true stomachs. जितनी भी यानी नेथोस्टोम्स हैं उनमें से अक्सर के पास ट्रू स्टमक नहीं है. एंड दिस इज अ सेकेंडरी कंडीशन विद नो सिंपल इकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. एंड द फिशेज विदाउट ट्रू स्टमक्स इंक्लूड काइमेरास एंड लंग फिशेज. And this condition is best documented in teleostei, including minnows such as the European rutilus, killifishes, wrasses and parrotfishes. तो ये वाली जो फिशेज हैं इनके अंदर ट्रू स्टमक नहीं पाया जाता है. Some fishes also lacks stomachs, which includes the holocephalans, which typically feed on mollusks, as well as some fish like lungfishes, which are predatory on fish, mollusks and arthropods. Barnacle eating blennies and a variety of herbivorous fishes, and these all fishes lack a stomach. In most fishes, the esophagus enters the stomach anteriorly and the intestine exits posteriorly. Typically, there is no anterior or esophageal or cardiac sphincter. However, most fishes possess a well-developed pyloric sphincter that regulates the passage of partially digested food. अब अगर हम स्टमकलेस कंडीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी ऐसी भी कुछ फिशेज हैं जिनके अंदर स्टमक नहीं पाया जाता, दीज आर नोन एज एगैस्ट्रिक फिशेज. एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड बोथ साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल. यानी जो स्टमकलेस फिशेज होती हैं, कंडीशन होती है, उसके दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक सेल लेवल पे, एक बायोकेमिकल लेवल पे. साइटोलॉजिकली नो गैस्ट्रिक एपिथीलियम और ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. तो अगर हम साइटोलॉजिकली देखें तो कोई गैस्ट्रिक एपिथीलियम या ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं ऐसी फिश के अंदर. द स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम ऑफ द ईसोफेगस ग्रेड्स इनटू द कोलमनर एपिथीलियम ऑफ द इंटेस्टाइन. तो इनकी ईसोफेगस जो होती है उसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल सेल्स होते हैं, जबकि इनकी इंटेस्टाइन के अंदर कौन से पाए जाते हैं, कोलमनर एपिथीलियल सेल्स. और बायोकेमिकली अगर हम देखें तो एक गैस्ट्रिक कंडीशन में क्या होता है कि नो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. तो चूंकि गैस्ट्रिक नहीं होगा, यानी स्टमक ही नहीं है, तो पेप्सिन भी पैदा नहीं होगा, एसीएल भी पैदा नहीं होगा. क्योंकि पेप्सिन या एसीएल का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन करना. तो जो एगैस्ट्रिक फिशेज होती हैं दे आर मोस्टली हर्बीवोरस, तो उनको तो प्रोटीन नहीं वो इनटेक कर रही. तो दैट्स वाई उनको ना पेप्सिन की ज़रूरत है ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत है कि उनका स्टमक हो और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें पैदा हों, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू डिजॉल्व शेल्स और बोन्स. लेकिन कुछ ऐसी फिशेज भी हैं जो शेल मोलस्क्स के खाती हैं या बोन्स वगैरह पे फीडिंग कर रही होती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बायोकेमिकली, क्योंकि उनके अंदर स्टमक नहीं है. तो वो जो शेल्स या बोन्स उनको डिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा, उनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, डाइजेस्ट नहीं किया जा सकेगा इन केस ऑफ ए गैस्ट्रिक और स्टमकलेस कंडीशन. In this slide, two fishes are shown which lack true stomach. The first one is chimera and the second one is lungfish. Chimera fish belong to the subclass Holocephali and they have a large head with a small mouth. Their mouth is surrounded by a large lip and they have a narrow tapering tail. Therefore, they are named as ratfish. तो chimera fish जो इसको ratfish भी कहा जाता है, इनके अंदर true stomach नहीं पाया जाता. दूसरी तरफ lungfish है, तो लंग फिश जो है इनको क्यों नाम ये दिया गया लंग फिशेज का, बिकॉज एयर सैक्स इन दीज फिशेज आर चेंज्ड इनटू लंग्स, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज लंग फिशेज. एंड टुडे ओनली 3 जेनरा आर सर्वाइविंग. तो अब प्रेजेंट डेट में अगर देखा जाए तो इसके 3 जेनरा जो हैं वो सर्वाइविंग है पूरी दुनिया में, बाकी खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं. द सेकेंड फिश विच यूजेज इट्स स्टमक एज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन इज गिजर्ड शैड. The gizzard shad is named for its muscular gizzard-like stomach, and gizzard shad eat microscopic phytoplankton and zooplanktons. Larger fish add algae and decaying organic matter to their diet. They also eat sand, which probably helps to grind up food in their gizzard-like stomach. So to eat, gizzard shad takes water or mud into their mouths and then strain it through their gills. Water and sediment are removed and the food is captured and eaten. To grind and break up this plant matter,
गिजर्ड शैड पोजेस अ यूनिक मस्कुलर स्टमक कॉल्ड द गिजर्ड। तो अब यहाँ पे आप इसका रूटीनस In this slide, you can see the pyloric caecae of sturgeons as well as the pyloric caecae of perch fishes। तो ये pyloric caecae आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको कर्सर के साथ दिखाए गए हैं। तो ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक अगर हम देखें तो इनका माउथ है, ये माउथ के बाद इनका जो ईसोफेगस है ये शुरू हो गया, फिर स्टमक है, यहाँ पे स्टमक के साथ यहाँ पे पाइलोरिक सीकी हैं, फिर ये इनकी इंटेस्टाइनल पार्ट जो है शुरू हो गया और लास्ट पे क्या है एनस। इसी तरह से स्टर्जन फिश में अगर देखें तो ये इसका माउथ है, माउथ के बाद ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, ये पाइलोरिक सीकम है, उसके बाद इनके ये इंटेस्टाइन्स हैं और लास्ट पे क्या है रेक्टम है। तो इस तरह से इनका एक ये डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसके अंदर पाइलोरिक सीकी के अब हम फंक्शंस देखते हैं कि क्या होते हैं। So the pyloric caecae are finger-like pouches that extend outward from the intestine near the pylorus. The enzyme lactase has been found in them in case of trout fish. A higher level of saccharase invertase activity has been found in the pyloric caecae and intestine of carp and bluegill compared to pickerel. The former ingest a considerable amount of vegetable matter, whereas the pickerel ingest practically none. The pyloric caecae and the intestinal mucosa are sources of lipase, which breaks down fats into fatty acids and glycerine. Absorption of fats may occur in the anterior parts of the intestine. The copepores upon which anchovies, sardines and herring prey contain up to 50% wax. तो इस तरह से इसके कुछ फंक्शंस ये आपको बता दिए हैं कि पाइलोरिक सीकी के फिश के अंदर फंक्शन क्या होते हैं और ये पाइलोरिक सीकी क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वेरियस फिश स्पीशीज आर कंपेयर्ड। अब जिनमें आप फर्स्ट फिश को देख सकते हैं वो ईल आपको दिखाई गई है, दूसरी सालमोनिड या सी बास है, थर्ड वन इज़ ब्लैनी और गोबी एंड द लास्ट वन फोर्थ वन इज़ मुलट। तो जो माउथ है फिश का ये आप देख सकते हैं तमाम फिशेज़ का। दूसरे नंबर पे जो है इनका ईसोफेगस आपको दिखाया गया है, अब उसकी थिकनेस से भी वेरी कर रही है। तीसरे नंबर पे जो है फ़िश का स्टमक दिखाया गया है। तो ये फर्स्ट टू स्पीशीज़ में आप फ़िश का स्टमक देख सकते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन है वो काफ़ी यानी आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से। और तीसरी फ़िश का अगर आप देखें तो इसमें स्टमक नहीं है, दिस इज़ ए गैस्ट्रिक फ़िश जिसमें आप यहाँ पे स्टमक हुई आपको रेड जो है वो रेडिश नहीं दिखाया गया। और फोर्थ वन में स्टमक जो है उसका वो शॉर्ट एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन फ़िश। तो ये मुलट का स्टमक आपको दिखाया गया है। इसी तरह से फिर पाइलोरिक सीकी उसके आगे आपको दिखाए गए हैं, या आप पाइलोरिक सीकी देख सकते हैं फिश के, जो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज कर देते हैं इन केस ऑफ फिशेस। तो यहाँ पे पाइलोरिक सीकी नहीं है, इसमें ये पाइलोरिक सीकी आपको मुलट में नज़र आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद मिड गट आप देख सकते हैं जो आपको ग्रीनिश दिखाई गई है, ये मिड गट है फिश की। तो इनकी लेंथ ये देखें वेरी कर रही है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। फिर उसके बाद हाइंड गट और मिड गट का आपको मैंने बताया जैसे कि ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है इसकी पूरी गट का, यानी कि फिश की जो है। उसके बाद ये हाइंड गट आपको दिखाई गई ब्लू से, तो ये हाइंड गट आप इनकी कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद गाल ब्लैडर फिश का आप देख सकते हैं जो है वो दिखाया गया। और लास्ट वन इज़ गिजर्ड। तो ये सारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं फिश के जो आप देख सकते हैं उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के, कि चारों फिश स्पीशीज़ के अंदर ये वेरी कर रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक की जो ओवरऑल अपीयरेंस है या ओवरऑल उसकी जो एनाटॉमी है वो वेरी करती है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशीज़। Now in this slide we will discuss about the length of intestine or the length of midgut. The midgut is typically the longest portion of the gut. यानी अगर फिश की हम गट को देखें इसमें फोर गट है, मिड गट है, हाइंड गट है और एंड पे रेक्टम है। तो मिड गट जो है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन माना जाता है एंड इट रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 1 बॉडी लेंथ टू ओवर 20 बॉडी लेंथ्स एंड मे बी कॉइल्ड इनटू कॉम्प्लिकेटेड लूप्स। तो अक्सर ये कॉम्प्लिकेटेड लूप्स की शक्ल में कॉइल किया गया होता है। ऑफन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच स्पीशीज व्हेन लॉन्गर देन द विजरल कैविटी। जब ये विजरल कैविटी से ज्यादा लॉन्गर होगा तो ये लूप्स की शक्ल में कॉइल कर जाता है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मिड गट ऑफन प्रोवाइड्स अ क्लू टू द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द स्पीशीज। तो अक्सर जो है फीडिंग हैबिट्स फिश की स्पीशीज जो है उसको हम देख सकते हैं इसकी लेंथ से। होएवर दिस रिलेशनशिप इज नॉट इनफेलिबल। So the length of intestine varies and is generally correlated with the feeding habits. Carnivorous fishes such as pickerels and perches have very short intestines, often 1/3 to 3/4 of their body length.
तो इनकी बॉडी लेंथ के मुकाबले में अगर कार्निवोरस फिश को देखें हम, जो गोश्तखोर मछलियाँ हैं, तो उनके अंदर जो इसकी लेंथ है वो वेरी करती है और बहुत शॉर्ट होती है। द इंटेस्टाइन इज मच लॉन्गर इन हर्बीवोर्स एंड डेट्राइटस फीडर्स, जबकि दूसरी तरफ वो फिशेज जो हर्बीवोर्स हैं या डेट्राइटस फीड है, मड ईटर्स हैं, या जो बॉटम फीडर्स है जिनको हम कह लें कि जो गला सड़े मादे पे फीड कर रही होती हैं, उनके अंदर जो है इसकी जो लेंथ है वो होती है 2 to 20 टाइम्स द बॉडी लेंथ। तो उनके अंदर इंटेस्टाइन 2 to 20 टाइम्स हो सकता है द लेंथ ऑफ द बॉडी। जैसे अभी एग्जांपल आपको एक दी गई है, इन द हर्बीवोरस नॉर्थ अमेरिकन स्टोन रोलर मिनो द इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग एंड रैप्ड अराउंड द स्विम ब्लैडर। तो इस फिश के अंदर इंटेस्टाइन इसकी काफ़ी लॉन्ग होती है और उसके स्विम ब्लैडर के इर्द गिर्द कॉइल की गई होती है, रैप अप की होती है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज नॉट ओनली द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन बट आल्सो द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। एंड इन एडिशन टू शार्क्स, as mentioned earlier, some primitive bony fishes such as the coelacanths, Latimeria calumnae जैसे है, lungfishes, gars and ladyfish have a spiral valve intestine that increases the surface area internally। तो हमने शुरू की स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि शार्क्स के अंदर जो है उसकी इंटेस्टाइनल एरिया में क्या होते हैं, स्पाइरल वॉल्व पाए जाते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी इनके अंदर एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है स्पाइरल वॉल्व का होना इन फिशेस के ग्रुप्स में, जो नीचे आपको मेंशन किए गए हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ फिशेस इज द रेक्टम। So we can say that the remainder of the digestive tract of fishes may be differentiated into a hindgut and a rectum. And at the posterior end, the hindgut exits the body cavity via the anus or cloaca, a chamber formed from infolded body wall, receiving both the anal and urinogenital openings which occurs in sharks, rays and sarcopterygians, but never in teleost fish or holocephalans. A prerectal iliorectal valve may be present as in many teleost, and some fishes also possess a single large hindgut cecum, which may be used as a final site for digestion and absorption. Like in case of Polypterus, fermentation of herbivorous materials or even as it acts like a respiratory chamber. The hindgut or rectum is not as well defined externally in fishes as in the tetrapods. तो इसको जो है हाइंडगट को जो है वो एक्सटर्नली इतना डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कहाँ से हाइंडगट शुरू हुई और कहाँ पे इसकी मिडगट है। जनरली द मसल लेयर नियर द रेक्टम इज थिकर देन इन द एंटीरियर रीजन्स। तो हाइंडगट की अगर हम पहचान करें तो इसमें यह है कि इसके जो मसल्स होंगे वो थिकर होंगे एज कम्पेयर टू द एंटीरियर रीजन्स, यानी जिसमें जो है वो मिडगट आ जाती है। And the number of goblet cells in the large intestine increases in the rectal region. अब जो rectal region होता है large intestine का, वहाँ पे जाके goblet cells भी increase कर जाते हैं। Goblet cells are basically column shaped cell which are found in the respiratory and intestinal tracts and they secrete the main component of mucus. यानी म्यूकस सेल्स को गोबलेट सेल्स भी कहा जाता है। तो ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं, गोबलेट सेल्स जो होते हैं, जो कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जिनकी तादाद जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इन केस ऑफ कॉन्डरइथाइज फिशेज यानी कार्टिलेजिनस फिशेज जैसे शार्क्स हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, द हाइंड गट इज लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो इनकी हाइंड गट जो है वहाँ पे सेल्स कौन से पाए जाएंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, कंट्रास्टिंग विद अ सिंगल सेल लेयर इन द मिड गट। तो मिड गट में जो है सिंगल सेल लेयर पाई जाती है। एन इलियोसिकल वॉल्व बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स इज ऑफन फाउंड इन टेलियोस्ट। तो टेलियोस्ट या मॉडर्न बोनी फिशेज जो है उनके अंदर अक्सर जो है इलियोसिकल वॉल्व होता है, बट दिस वॉल्व इज एब्सेंट इन कॉन्डरइथाइज, डिप्नोई एंड पोलिप्टेरस। अब अगर हम इलियोसिकल वॉल्व के हवाले से बात करें तो ये क्या होता है। इलियोसिकल वॉल्व इज अ स्फिंक्टर मसल वॉल्व दैट सेपरेट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन and the large intestine. Its critical function is to limit the reflux of colonic contents into the ileum. ठीक है ना, कि जो इलियम के अंदर दोबारा कोलोन के कंटेंट्स वापस रिफ्लक्स बैक ना कर जाएं, तो उससे प्रिवेंट करना काम किसका है, इलियोसिकल वॉल्व का, जो कि फिशेज के अंदर अक्सर में पाया जाता है, टिलियोस फिशेज के अंदर, यानी रेयर लेकिन है, बट इट इज फाउंड इन टिलियोस फिशेज ओनली।
Now we will discuss about the liver of the fishes. The liver and pancreas both participate in digestion. The liver develops as a ventral evagination of the intestine as in other vertebrates. तो दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ये वेंट्रल इवेजिनेशन ऑफ द इंटेस्टाइन से लिवर जो है वो डेवलप होता है. अब इवेजिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ सम पार्ट और ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन. The anterior portion develops into the liver proper and the posterior portion into the gallbladder and its ducts. तो इंटेस्टाइन का जो एंटीरियर पोर्शन है वेजिनेशन से जो बना था उसमें लिवर प्रॉपर बनेगा और दूसरा जो है उसका पोस्टीरियर पोर्शन उससे गाल ब्लैडर और उसकी डक्ट्स बनती हैं. Some holostean and some teleostean fishes have more than 2 liver lobes, but there are always only 2 hepatic ducts from the liver to the cystic duct which terminates in the gallbladder. The gallbladder is a temporary storage organ for secretions of the liver. From the junction of the hepatic and cystic ducts, there arise the common bile duct, which enters into the beginning of the intestine near the pyloric region. Besides the role in its digestion, the liver also acts as a storage organ for fats and carbohydrates like glycogen. It further has important functions in blood cell destruction and blood chemistry, as well as other metabolic functions such as the production of urea and compounds concerned with nitrogen excretion. Fishes vary greatly in the amount of fat that is stored in the liver, but two general types can be distinguished. In flat fishes and cod, for example, fat is stored predominantly in the liver. Fat is to a great extent stored in the muscle of fishes such as tunas and herrings. Sharks and bony fishes differ in the relative amounts of unsaturated fatty acids in their liver oils. In some sharks, the liver may take up as much as 20% of the body weight. Besides storing fat, the livers of fishes also store vitamins A and D. The content of these vitamins in the tunas, for instance, is so high that persistent eating of their liver may lead to severe disturbances in human metabolism, which presumably result from hypervitaminosis. तो अब इसमें लिवर जो है फिश का अगर हम देखें तो उसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो प्रॉपर लिवर में डेवलप हुआ है और पोस्टीरियर पोर्शन जो है गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट में डेवलप हुआ है. तो लिवर जो है फैट्स को भी स्टोर कर सकता है कुछ फिशेस के अंदर. कॉड्स और शार्क्स जो होते हैं इनको हम हार्वेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लिवर ऑयल विच इज रिच इन विटामिन ए एंड डी. द गॉल ब्लैडर इज अ थिन वॉल्ड टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन फॉर द बाइल. तो ये गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल को स्टोर करने वाला ऑर्गन है जो टेम्पररी स्टोर करता है. इट एम्पटाइज इनटू द इंटेस्टाइन नियर द पाइलोरस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स. Bile is usually green due to bile pigments biliverdin and bilirubin resulting from the breakdown of blood cells and hemoglobin. तो बाइल का कलर ग्रीनिश क्यों होता है? क्योंकि इसमें बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं. और वो बाइल पिगमेंट्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? कि जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होगी यानी ब्लड सेल्स की, आरबीसीज की, तो उससे क्या होगा फिर बिलिरुबिन जो है वो बनती है. बिलिरुबिन येलोइश कलर की होती है, इसी वजह से इसका ग्रीनिश कलर बनता है बाइल पिगमेंट्स का मोस्टली. एंड ऑल्सो कंटेन्स फैट एमल्सिफाइंग बाइल साल्ट्स. अब इसके अंदर फैट एमल्सिफाइंग बाइल साल्ट्स भी पाए जाते हैं. यानी बाइल को अगर देखें तो इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं और बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं. बाइल साल्ट्स क्या करते हैं? ये एमल्सिफिकेशन करते हैं फैट्स की, विच मे असिस्ट इन कन्वर्टिंग द एसिडिटी ऑफ द स्टमक टू द न्यूट्रल कंडीशंस इन द इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन में ये न्यूट्रल कंडीशंस जो है वो उसको मेंटेन करवाते हैं. एसिडिटी जो स्टमक की उसको कम कर देते हैं बाइल साल्ट्स होते हैं. Now in this slide we will discuss about the pancreas which is considered as really as a two organs rather than one. तो इसको टू ऑर्गन्स कंसीडर किया जाता है, एक सिंगल ऑर्गन नहीं. बिकॉज इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस. अब एंडोक्राइन ऑर्गन ये किस तरह से है? क्योंकि ये क्या करता है, इंसुलिन या ग्लूकागोन वगैरह को रिलीज करता है जो कि इसके हार्मोन्स हैं और वो जाके अफेक्ट करते हैं सेल्स को. दूसरी तरफ अगर एक्सोक्राइन ऑर्गन के तौर पे इसे देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को पैदा करता है, यानी पैंक्रियाटिक जूसेस पैदा करता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं वाया ट्यूब्यूल्स, और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी कि डाइजेस्ट करते हैं, फूड के डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं. The pancreas varies greatly in type of development and position in various groups of fishes. In case of sharks and rays, the pancreas is relatively compact, often two-lobed,
बट इन बोनी फिशेज द पैंक्रियाज इज ऑफन डिफ्यूज। तो बोनी फिशेज के केस में पैंक्रियाज जो है एक प्रॉपर शेप में नहीं है, ये डिफ्यूज होता है, यानी कहीं पे भी हो सकता है। देयर आर स्मॉलर और लार्जर नोड्यूल्स ऑफ पैंक्रियाज टिश्यू इन द ओमेंटम, द सस्पेंसरी टिश्यूज ऑफ द इंटेस्टाइन, in addition to dispersion of the pancreas into the liver to form a hepatopancreas among many spiny rayed fishes। अब स्पाइनी रेड फिशेज में क्या होता है कि ये लिवर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है और हिपैटोपैंक्रियाज के तौर पे बना देता है, यानी एक सेपरेट ऑर्गन के तौर पे नहीं होता, डिफ्यूज होता है। द अरेंजमेंट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स दैट सिक्रीट इंसुलिन, द पैंक्रियाटिक आइलैट्स और द आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेज विच पोजेस अ डिस्क्रीट पैंक्रियाज। So the enzymes include proteases such as trypsin। पैंक्रियाज के बेशुमार एंजाइम्स जो ये पैदा करता है, कार्बोहाइड्रेसेस such as amylase and lipase, and in some insects feeding fishes chitinase। तो वो काइटन को डाइजेस्ट करने वाले होंगे, जो इंसेक्ट्स की काइटन होती है। तो इसी तरह से प्रोटीएसिस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, कार्बोहाइड्रेसेस जो हैं वो फिर किसको करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे अमाइलेज है और लाइपेज वगैरह हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। द पैंक्रियाज इज अ कॉम्पैक्ट ऑफन टू लोब्ड स्ट्रक्चर इन कॉन्डरिथा, इज डिस्टिंक्ट इन सॉफ्ट रेड टिलियोस्ट, बट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिवर एज अ हिपैटोपैंक्रियाज। लेकिन ये फिश के लिवर में भी हिपैटोपैंक्रियाज के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर जाता है स्पाइनी रेड फिशेज के अंदर या स्पाइनी रेड टिलियोस्ट के अंदर, एक्सेप्ट फॉर पैरट फिशेज। पैरट फिशेज के अलावा ये बात हो रही है। The anatomically and histologically diffuse nature of the pancreas makes it difficult to study pancreatic function in these advanced fishes। तो चूंकि हिस्टोलॉजिकली भी एनाटोमिकली भी जो है ये एक जो डिफ्यूजिव नेचर रखता है, तो इसीलिए जो स्पाइनी रेड फिशेज हैं या टिलियोस्ट हैं, इनके अंदर जो पैंक्रियाज की स्टडी करना है ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट काम है। The various enzymes that digest specific carbohydrates have been found in the intestine as well as in the pancreatic juices of fishes. In the predominantly herbivorous tilapia, amylase activity was distributed throughout the gastrointestinal tract, but in carnivorous perch, the pancreas was the only source of amylase activity. There is evidence from several fishes, for example, minhardin, silverside and silver perch, that fishes have endocommensal bacteria possessing cellulase which can break down the cellulose plant materials both for their own nutritive value, small as that may be, and to make the contents of the plant cells available for utilization by the fish. Still, herbivorous fishes largely rely on mechanical breakdown of plant cell walls, hence the extensive development of cutting, tearing and grinding teeth among them, and the habit of feeding almost incessantly during daylight. Examination of the feces of an herbivore such as the Asiatic grass carp reveals that cells not break down by the teeth appear intact and even retain their green pigments. Whole algal cells are also passed intact through the gut of some plankton feeders such as the gizzard shad. In this slide you can see the pancreas of a fish. The pancreas is an important source of digestive enzymes. It may be a discrete organ or a diffuse mass of tissue, often interwoven among pyloric cicae. Islet cells are the source of insulin and glucagons, may be found within the pancreatic mass, as in typical of higher vertebrates, or separately often in association with the liver tissues. Endocrine pancreatic islet cells are often consolidated into large tissue masses which are known as Brockman bodies. Newly absorbed nutrients are transported to the liver by the hepatic portal vein. The liver, which may be the largest organ besides the swimming muscles in a fish body, is not directly involved with digestion but assimilates nutrients, produces bile, and detoxifies the toxins from both endogenous and exogenous sources. A final organ associated with digestion is the gallbladder, which secretes bile produced by liver that aids in emulsification and increases the intestinal pH. The gallbladder also excretes absorbed toxins and metabolic waste back into the gut for elimination. Now we will discuss about the Brockman bodies. Endocrine pancreas islet cells are often consolidated
into large tissue masses known as Brockman bodies. अब यहाँ पे आप इसकी ये Brockman bodies देख सकते हैं. एंडोक्राइन टिश्यूज़ की जो है इसके आइलेट सेल्स वगैरह जो हैं वो बहुत सारे लार्जर टिश्यूज़ मैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ब्रोकमैन बॉडीज़ का नाम देते हैं. ब्रोकमैन बॉडी इज़ एन एंडोक्राइन ऑर्गन इन सम टिलियोस्ट फिश and is composed of a collection of islet tissues. The islet tissues are in turn composed of endocrine cells, which are the principal sites of insulin synthesis. They are distributed around the spleen and the large intestine. They also secrete other hormones such as glucagon and somatostatin. Somatostatin भी यानी ये पैदा करते हैं. Hence, Brockman body is the center of control of blood glucose level in these fishes. Glucagon is also produced from the intestine, but Brockman body is the major source. Increased level of glucose stimulate the Brockman body to release insulin while inhibiting glucagon. Somatostatin released from Brockman body inhibits cells to produce insulin and glucagon. In addition, it inhibits release of growth hormone from the pituitary. It is named after a German physician, Heinrich Brockman, who discovered it in 1848.